खराब कर दी मेरी। इस घर के बहुत बड़े बड़े। कितना मजा आ रहा है ना तुझे? तू मानता है कि जिंदगी भर साथ है? जिंदगी खराब कर दी मेरी। तो जिंदगी भर साथ रहेगी तो खराब होगी ना जिंदगी। नहीं नहीं, तो जिंदगी कैसे खराब होगी? अरे इतना अच्छा चलो, तुम्हारा हमारे बारे में क्या ख्याल है? अपनी छोड़ो, तुम हमारे बारे में बात करो। अरे नहीं, चेंज द टॉपिक। जब हम इतने अच्छे से बात करते हैं कि तुम्हारा क्या चल रहा है तुम बताते ही नहीं हो। एक तो तुम्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैप्टन ऑफ शिप बना रहे, फिर तुम बनना नहीं जा रहे। मैं हूँ ऑलरेडी क्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैप्टन ऑफ शिप। शिप कहाँ है? बिग बॉस हाउस। इसको मारो ना पकड़ के। हंसने दो उसको। ठीक है। बुली। ठीक है। बुली। बुली। बुली का स्पेलिंग बताइयो। तू बताइयो गवार। BEBIKA। बुली। ABHISHEK। अभिषेक। तू है बुली। एरोगेंट, सेल्फ सेंटर्ड। निब्बा निब्बी आए, मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं था यार। दफा हो जाओ। ओके बाय टाटा। अरे जा। कुत्ता है ये आदमी। उसने कितना मेरे को प्रोवोकेटिवली बात की अभी। इसको इतनी जलन है ना, मेरे से जलता है मजनू। Just throw it and put one on another one. आओ। दीदी इसको भी पॉलिटिशियन बनना है। आपको भी बनना है? इसका दीदी ने मेरे को बोला कि I should be a politician. Can you translate again? Can you translate to me what? बता, अब जो होगा वो चलेगा, चलते ही रहेगा ये। इसको सच्ची किसी की प्रोग्रेस बर्दाश्त नहीं होती। तुमसे पहले 2-3 बार लड़ी थी तब हम सीरियसली सुनते थे। अभी तो कुछ भी बोल, इल्ले पोए। मैं तो हंसती रहती हूँ। अभी तूने क्या और कोई डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं बचा नेगेटिव, सब बोल दिया उसको। ये तो पेट्रोल ही नहीं खत्म होता। No, I am serious, you guys. Just that sometimes you take things in different ways. I know. I don't find like reasons to take it the same way. I wait, I observe, I get a lot of translations, body language, emotions, feelings, interactions with you. I can't just like, I can't do that. I'm not that guy. But maybe I should just keep up with you, just play the game like you guys doing. Maybe I should do that. But I come from a different background. I come from everything that's different. Okay? Bro, I just tell you to be you because Exactly. I was about. मैं वही बोलने वाली थी. Listen, you just now, you did what you needed to do. You just be yourself. Yeah, I am completely myself. 100%. बस. End of story. I am completely myself. Because when you go home, you have to live with yourself. You're not going to be there to hold your hand. Yeah, So you do exactly. what is right for you to do. Yeah, and I'm doing that. I'm not like. हमारे ओपिनियन थोड़े बहुत Just. मैच करते हैं। It's just that I play the game. It's just that I play the game a little softer than you guys do. That's all. It's because I am emotional. But genetically, I am stupidly emotional. When he talks, he can make someone emotional very quickly. हम कब होंगे इतने मैच्योर? तेरे से तो मुश्किल है। लग रहा है इसका रीजन सुन के मैं इतना हंसा हूँ ना भाई। रीजन क्या सच्चाई है यार? I had so much more I wanted to say, honestly, but I could have like मुझसे? the best part was like you came up completely with all your genuine feelings. Like if they were listening to it, what you felt at that moment, like all the backstory, then obviously they can like take it positively and improve in future. That's what I believe. yeah. Well, besides, I mean, my friendship with her, with Gia, is genuinely nice, regardless of where she positioned me many times and how she played fair. Like she made me a number like anybody else, which I never did that. And I highlighted this point. But I don't want to give some people the privilege. Oh, okay, he said that what I want. No, I'm not going to say what you want me to say. Yep. You guys talk. Welcome.
Yes, that's my place. Thank you very much. There's a lot of smoke in the room. विश के बाहर गर्लफ्रेंड हुई तो क्या होगा? वो उसका कंसर्न है। मुझे गर्लफ्रेंड वाले बंदे चाहिए ही नहीं लाइफ में कभी, ना इस घर में ना बाहर। मैं कमिटेड इंसानों से बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होती। बेवकूफ़ी लगती है मुझे ये किसी और के बंदे पे फीलिंग्स जनरेट करना। तुम्हारे हस्बैंड पे कोई दूसरी औरत फीलिंग्स जनरेट करेगी, तुम्हें कैसा लगेगा? किससे पूछ रही है? मैं इन जनरल बोल रही हूँ, किसी भी लड़की को कैसा लगेगा? भाई जो जिसके साथ है उसके साथ। हस्बैंड से ही क्यों हो? यहाँ तो बॉयफ्रेंड। मैं तो बॉयफ्रेंड को भी हस्बैंड मानने लग जाती हूँ। सच्ची में मैंने अब तक जिसको भी डेट किया है ना, दैट गाय, उस बंदे ने मुझे वाइफ की तरह ट्रीट किया है, मैंने उसे हस्बैंड की तरह ट्रीट किया है। आई स्वेयर। फिर तुम्हारा डिवोर्स कैसे हो गया? मेरे ब्रेकअप्स क्यों हुए? हाँ। पहला तो द गाय वाज अ कंप्लीट नार्सिसिस्ट, कंप्लीट। फिजिकल अब्यूज से लेकर इमोशनल अब्यूज से लेकर पूरी लाइफ ही झंड करने पे तुला था मेरी। वो एजुकेशन छुड़वा देना चाहता था। ही वाज हैविंग दैट इनसिक्योरिटी। डॉक्टर कॉलेज लाइफ में ही मिले ना हम, तो 11th में मिली मैं उससे, और वो मुझसे 3-4 साल बड़ा था। तो वो इतना नार्सिसिस्टिक था, वो मेरी प्रोग्रेस ही नहीं देखना चाहता था। तो वो हुआ। दूसरा फिर एक वो अरेंज मैरिज का ही प्रपोजल आया था मुझे मेरे रिलेटिव्स में से। दूसरा जो था वो भी एक अरेंज मैरिज का प्रपोजल आया था मेरी कम्युनिटी से, पर वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में रहता था। तो उससे मैंने 6-8 महीने बात की, ऑन ऑफ। और वो ऑस्ट्रेलिया बुला रहा था डेस्परेटली, इधर आ जा, हम एक सेरेमनी करते हैं पेरेंट्स को लेके, ये वो, क्योंकि मिलवाया ही पेरेंट्स ने था हमें। और लॉन्ग डिस्टेंस ही था। वो लॉन्ग डिस्टेंस होते होते वहीं पे कट ऑफ हो गया। मैं कभी मिली नहीं उससे, क्योंकि उस बंदे का ऐसा था कि जब वो रिश्ता लेके आया था ना, उसने बोला कुछ और था, पर जब मैं बात करने लगी निकला कुछ और। अपनी प्रोफाइल और अपने अर्निंग्स से लेकर अपनी एजुकेशन तक सब झूठ बोल रहा था। पर वो देखकर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि एक तरह से अटैचमेंट हो गई थी ना, 6 महीने बात की थी। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू एक मामूली वेटर का काम कर रहा है, वहाँ से हट के तू अपना खुद ना बिजनेस शुरू कर, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगी, आई विल बी देयर फॉर यू, लेट्स जस्ट प्लान थिंग्स अप। और मैंने उसको लिटरली वहाँ से उठा के एक मॉरल सपोर्ट के साथ, एक मेंटल सपोर्ट के साथ एक अलग ही फेज में लाया। और जब वो अच्छे फेज में आया, मैं निकल गई वहाँ से। किसकी बात चल रही है? मेरा पूछ रही है। अच्छा। मैं निकल गई वहाँ से। आई ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम एंड आई लेफ्ट। फिर उसके बाद रिलेशनशिप्स नहीं रहे, डेटिंग साइकिल शुरू होते होते आजकल पता है ना कैसे है, कोई सीरियस नहीं लेना चाहता डेटिंग को। मुझे कोई लड़का प्रपोज कर दे तो मैं सीधा रिलेशनशिप और शादी सोचने लगती हूँ, बट लड़के भी तो वैसे सीरियस होने लड़के भी हैं वैसे, ऐसी बात नहीं है। कहाँ है? होते हैं। मिलेनियल्स बहुत बिगड़ गए हैं, जेनजीज बहुत बिगड़ गए हैं, मुश्किल है। दुबई में तो सच्ची, यहाँ कौन से सुधरे हुए हैं? यहाँ पे भी बहुत खराब हाल है मुंबई में। यहाँ सिर्फ लड़कों पे ब्लेम मत डाल। मैं कौन हूँ? हाँ यार भाई, मैं भी करता अपने आप को फॉलो। मैं हक रहा था और मेरे को एकदम से याद हुआ। हाँ यार, मेरे पे और कोई रीजन नहीं ना, क्योंकि मैं पुरानी चीजें याद नहीं करता भाई। एक बार जो हो गई हो गई। कसम से है मनीषा, मैं बाथरूम गया, मेरे को इसकी लाइन याद आई, मैं हंसने लग गया। भाई मुझे एक चीज बता, अब जैसे मेरी बात सुनियो, अब जैसे जो मैंने रीजन दिया ये बीच में आता है। अब जो एक चीज बता, अब जैसे मैं उसको ये बोलता रीजन कि बिग बॉस ये कुछ काम नहीं करता, ये मुझे दिखाई नहीं देता, ये हवा, ये हो चुकी ना। ये तो पता है कि ऑडियंस है वो, ये हो चुका। अब कुछ नया तुम। ये बात बढ़िया है। नहीं, अब तो आ रहा मुझे गेम खेलना सर। मैं नहीं रखा है फूजा दी, कुछ काम है मुझे। समझ रहा हूँ। तू दिशाहीन नहीं है। अरे मैं चिल हूँ यार। किसने काटा? मैंने नहीं काटा। नहीं, वो सड़ रहा था तो उसने काट के रखा है। तू दिशाहीन नहीं है, पर हम फ्रीज कर रखा, कुछ दिशा खाती समझ नहीं। चुका है। और क्या था उसमें? मैं दिशाहीन हूँ। मैं दिशाहीन यहाँ भटक रहा हूँ, नालायक बस यहाँ लटक रहा हूँ। देखिए अभी इसको दिशा मिल गई है इसकी। अब ये लटक वाली नहीं काटनी। अब ये लटका रहा है। भाई मैं वैसे शुरू से लटका रहा था। Can I use this? या you can use। इसके अरे लिए अब इसको बोलो बिग बॉस को भी खत्म करे ना। Why would I? मजाक है। वो तेरे को नॉमिनेट कर कह रही है, करेगी। अरे ऐसी की तैसी करेगी, बेड में उस मेरे साथ ही सोते भाई, मैं पिल्लो रख के दबा दूंगा। नहीं कर रही हो। नहीं करेगी वो। अगर वो मेरे को नॉमिनेट करेगी तो वो फेयर ही नहीं दिखेगी भाई, सीधी सी बात है। कर लो नॉमिनेट। और पहले बता, मेरे हिसाब से हमारे लिए फायदा था अगर नॉमिनेट होता ना तू। नहीं था।
मेरा नॉमिनेट होना फायदेमंद नहीं होता कभी मेरी ऑडियंस पे प्रेशर आ जाता है कहीं भाई है, भाई बाहर तो नहीं आ जाएगा अबे हो जाना, मजे आएंगे। बाहर दोनों टीमों को पता लग जाएगा साला क्या सिस्टम है। बाहर पता लग रही है कितना क्या मिलता मतलब बाहर कितना क्या नहीं मिलता? नहीं वो सीधा फाइनल में देखे बाहर उनको अंदाजा हो जाएगा। नहीं साढ़े- दो जवाब, उफ उफ दो तगड़े वाला। फलक बेटा फलक जवाब दे फलक काय को शर्मारी बता सच्ची मुझे तो बताओ क्या बताऊं? कि क्यों? आपस में कुछ क्यों? ए धौस काय को जमाता है रे क्यों बताया तेरे को? चल कौन है तू? हर बात पे धौस जमा के बता देता है सरदार बच्चे हो तुम, चुपचाप बैठे रहो। हाँ तो पापा बैक जी पे। मेरे को तो पहले बताओ मैं तू तेरा पेट्रोल संभाल, टांकी फोड़ूंगा, कुछ बचेगा नहीं। वो खत्म ही नहीं होना कुछ तो बताओ, कुछ एक्सचेंज हुआ है? कुछ भी नहीं Oh my एक्सचेंज। God. क्या एक्सचेंज होगा हमारा? हमारा साइलेंस में ही बहुत कुछ टेलीपैथी हो जाता है ना। करेक्ट। ऐसे स्किल्स हमारे पास नहीं है काश तेरे पास होता है स्किल, तो अभिषेक और तेरा साइलेंस में ही सब एक्सचेंज हो जाता, घर वाले बच जाते। हाँ गुस्से में ना उसके पास भी नहीं है स्किल्स। तुझे क्या लग रहा है हमारी लड़ाई नहीं हुई है कभी? बिल्कुल नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी। हमारी प्रिवेसी में हुई है, हमारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिवेसी। ये लड़ाई भी हुई, शॉर्ट भी हो गई, पत्ता भी नहीं चला 2 से 3 बार लड़ चुके हैं, बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, डेढ़ दो मुंह भी